یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 11 دسمبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا محافظ انسان۔ سنہری متن: زبور۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، خواہ میرے خلاف جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا تاکہ خداوند کے جلال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ درسیواز بائبل میں سے زبور۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے۔ دانیل۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا، اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ بس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ ابد تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے،
बल्कि हर रोज़ 3 बार दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे, ऐ बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की माद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उसके मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी। तब बादशाह अपने कस्र में गया और उसने सारी रात फाका किया। और बादशाह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला। और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी ऐ बादशाह मैंने कोई खता नहीं की। बस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मांद से निकालें। बस दानियल उस मांद से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कुल किया था। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रोए ज़मीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी ममलकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसान और लर्जा हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलकत अबद तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और ज़मीन में वही निशान और इजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। ज़बूर। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदा उनके बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। मुकाशफा। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जिंदगी हमेशा का मैं हूँ, यानी वो हस्ती जो था और जो है और जो आने वाला है, जिसे कोई चीज़ भी ख़त्म नहीं कर सकती। इब्तदा से आखिर तक पूरा कलाम पाक मादे पर रूह अक़ल की फ़तह के वाक़यात से भरपूर है। मूसा ने अक़ल की ताकत को इसके ज़रिए साबित किया जिसे इंसान मौजज़ात कहता है। इसी तरह यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। मसीही दौर को अलामात और अजायबात की मदद से बढ़ाया गया। इब्रानी, यूनानी, लातीनी और अंग्रेज़ी ज़बानों में ईमान और इससे मुतल्लिक़ा अल्फाज के दो मतलब हैं, सच्चाई और एतमाद। ईमान की एक किस्म दूसरों की फलाह के लिए किसी शख्स पर भरोसा करती है। ईमान की दूसरी किस्म इलाही मोहब्बत और इस बात की समझ रखती है कि किसी शख्स ने बग़ैर खौफ किए अपनी खुद की निजात के लिए कैसे काम करना है। ऐ खुदावंद, मैं एतक़ाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतक़ादी का इलाज कर। ये बात अंधे भरोसे की बेबसी जाहिर करती है, जबकि ये हुक्म कि ईमान ला तो तू निजात पाएगा एक खुद मुख्तार एतमाद का मुतालबा करता है, जिसमें रूहानी फ़हम शामिल होता है और ये सब बातों का खुदा के सामने इतराफ़ करता है। इब्रानी लफ्ज़ ईमान का मतलब मजबूत होना या मुस्तकिल होना भी है।
یہ यकीनन सच्चाई और मोहब्बत के समझे जाने और उस पर अमल पैरा होने पर लागू होता है। गलती पर मजबूत होना गुनाह, बीमारी और मौत से कभी नहीं बचाएगा। इलाही मोहब्बत जिसने जहरीले सांप को बेज़रर बनाया, जिसने आदमियों को उबलते हुए तेल से, भड़कते हुए तंदूर से, शेर के पंजों से बचाया, वो हर दौर में बीमार को शिफा दे सकती और गुनाह और मौत पर फतमंद हो सकती है। उसने यस्सु के इजहारों को बिला सबकत ताकत और मोहब्बत से सरताज किया, लेकिन वही अकल जो मसीह यस्सु की भी है, साइंस के ख़त के हमरा होनी चाहिए, ताकि नबियों और रसूलों के पुराने इजहारों को दोहराए और तस्दीक करे। ये बात ख्वाहिश की कमी की बदौलत इस कदर उजागर नहीं होती जितनी रूहानी बढ़ोतरी की कमी की वजह से होती है कि वो अजीब काम आज अमूमी तौर पर नहीं दोहराए जाते। पौलुस रोमियों के नाम अपने ख़त में कहता है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। कलाम पाक के रूहानी साइंसी मफहूम की इतनी ज़्यादा मुखालफत होगी जितनी मसीही दौर के आगाज़ से अब तक कभी नहीं हुई। सांप मादी फहम औरत की एड़ी डसेगा, मोहब्बत के रूहानी ख्याल को नेस्त करने की कोशिश करेगा और औरत यानी ये ख्याल शहवत का सर कुचलेगी। रूहानी ख्याल ने क्रिश्चियन साइंस में फहम को एक कदम जमाने की जगह दी है। सच्चाई का बीज और गलती का बीज, अकीदे और समझ का बीज, हाँ रूह का बीज और मादे का बीज, वो गेहूं और कड़वे दाने हैं जिन्हें वक्त अलग करेगा। एक को जला दिया जाएगा और दूसरे को आसमानी मुकामों में जमा किया जाएगा। इखलाकी हौसला यहूदा के कबीले का बब्बर ज़हनी सल्तनत का बादशाह है। ये जंगल में आज़ाद और बेखौफ घूमता है, खुले मैदानों में ये साकन बैठा रहता है या हरी चिरागाहों में चश्मों के पास ये आराम करता है। इलाही फरासत से इंसान में तशबीही तरसील में जानफिशानी, चालाकी और साबित कदमी हजारों पहाड़ों के चौपाओं की मानद तस्वुर किए जाते हैं। वो ठोस हल होने वाला सामान लेते हैं और बड़े मकासद के लिए रफ्तार बढ़ाते हैं। नरम मिजाजी रूह की इनायत करदा तमाम तर ताकत के हमरा होती है। खुदा की तख्लीक की गई इनफरादियत दरिंदा सिफ्त नहीं है, जैसे कि यसाया में 1000 साल सल्तनत की तस्वीर कशी में गवाही दी गई है। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। उस इख्तियार को समझते हुए जो मोहब्बत सब पर रखती है, दानियल ने शेरों की माद में महफूज महसूस किया और पौलुस ने सांप को बेजरर साबित किया। खुदा की तमाम तर मखलूक़ात जो साइंस की हम आहंगी में चलते हैं वो बेजरर, मफीद और लाजवाल हैं। अक्ल ही सबसे बड़ा खालिक है और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अक्ल से अख्ज़ ना की गई हो। अगर अक्ल तारीखी तौर पर पहले थी, ताकत के एतबार से भी पहले है, अब्दियत के लिहाज से भी पहले है, तो उसके पाक नाम के मुवाफिक अक्ल को जलाल, इज्जत, इक़्तिदार और ताकत दें। इंसानी सोच कत्ल करने या इलाज करने की कोई ताकत नहीं रखती और इसका खुदा के बशर पर कोई काबू नहीं है। इलाही अक्ल जिसने इंसान को बनाया खुद की सूरत और शबीह को कायम रखती है। इंसानी अक्ल खुदा की मुखालिफ है और उसे मुल्तवी होना चाहिए, जैसा कि मुक़द्दस पौलुस वाज़ह करता है। वो सब जो दर हकीकत मौजूद है वो इलाही अक्ल और उसका ख्याल है, और इस अक्ल में तमाम हस्ती हम आहंग और अब्दी पाई जाती है। सीधा और तंग रास्ता इस हकीकत को देखना और तस्लीम करना, इस ताकत को मानना और सच्चाई की रहनुमाई पर चलना है। इंसान के बनाए हुए अकीदे ज़वाल पजीर हैं, वो मुसीबत में ज़्यादा मजबूत नहीं रहे। मसीह की क़ुव्वत से खाली वो मसीह या फजल के मौजज़ात से मुतल्लिक़ अकीदों को कैसे बयान कर सकते हैं। मसीही शिफा के इम्कान से इनकार हर अंसर की मसीहत छीन लेता है, जिसने पहली सदी में इसे इलाही क़ुव्वत और इसकी हैरानकुन और बेमिसल कामयाबी अता की। हकीकी लोगोस काबिल इस्बात क्रिश्चियन साइंस है,
ہم آہنگی کا فطری قانون جو اختلاف پر فتح ہوتا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ یہ سائنس مفوق الفطری یا غیر طبعی ہے، اور نہ ہی کیونکہ یہ الہی قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ خدا یعنی اچھائی کا ناقابل تبدیل قانون ہے۔ یہ ادراک کہ زندگی خدا روح ہے، زندگی کی لازوال حقیقت پر، اس کی قدرت اور لافانیت پر یقین رکھنے سے ہمارے ایام کو دراز کرتا ہے۔ ایمان ایک سمجھے گئے اصول پر انحصار کرتا ہے۔ یہ اصول بیمار کو شفا یاب کرتا ہے اور برداشت اور چیزوں کے ہم آہنگ مراحل ظاہر کرتا ہے۔ صرف ایک واحد گناہ پر فتح یابی کے لیے ہم لشکروں کے خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ تمام تر گناہوں پر ایک عظیم فتح کو ہم کیا کہیں گے؟ آسمان پر اس سے پہلے کبھی اتنا میٹھا ایک بلند گیت نہیں پہنچا جو اب مسیح کے عظیم دل کے قریب تر اور واضح تر ہو کر پہنچتا ہے، کیونکہ الزام لگانے والا وہاں نہیں ہے اور محبت اپنا بنیادی اور ابدی تناؤ باہر نکالتی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔